Good morning, good morning. A very good morning to all of you. Good morning. Good morning, everyone. Dear students, we have discussed application for job in the last and last to last class also. Two classes we have spent on the topic application for jobs. And if you might have remembered the board's pattern, CBSE paper, would you like to tell me what is the option against the same question? Very good. Anyone else knows the Report. option against? Yes, very good. Report. Yes, as Herman German. Report writing. Report writing. Okay. So all of you must be familiar with the same question also, as report writing is also 5 marks. Been observed some of the students usually leave the question for job, as sometimes you have to write not only application, but also you have to prepare a resume along with your application. And sometimes if not separate resume, if you have to attach, you have to add the details of your experience, your qualifications inside the application, means including the application. But some of the students are in familiar with writing report, as maybe some of you have done the same previous class plus one. So some students can choose report writing also. Application for job is also good in writing it creative form. And, the alternate question is of report writing. So today we are going to discuss report writing, how the report writing question can be asked, and how jotted down, किसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है. Okay, so let us discuss today how report writing can be done. First of all, we will discuss the marking criteria of report writing. Marking scheme. As report writing is also of, as we had discussed earlier, though title will be of 1 marks, and after that content will be of 3 marks. Okay, and last but not the least, expression will be of 1 mark. Okay, so this is marking scheme of a report writing. So as I had discussed, title will be of 1 mark, content will be of 3 mark, and expression will be of 1 marks. So this is the marking scheme of a report writing, which you must know. Now let us discuss the structure. We are discussing report writing under writing section. Report writing, we are discussing now structure
how the structure can be. In the very beginning, box must be there, and here, as you know, heading, HEADING, heading of the report. Okay, and if the name is given, who has written this report, who has jotted down, then by the name of the person here. But if the name is not given, then you can mention any alphabet like ABC, XB, XYZ, or PQR, anything which you want to mention. So this is called title, which will be of 1 mark. Okay, title. After that, here from the very next line, no need to leave the line. First, it will be place, comma, date. It can be mentioned here. Okay, and then sign of colon, and then your report will begin from the same line. In this manner, your report will begin. Okay, and this is called content, and the content is of 3 marks. Title will be of 1 and content will be of 3 mark. Okay, so that must be. Now you can ask कि sir, what do you mean by expression, कि एक्सप्रेशन में हम क्या ऐसा करें कि जिसमें हमारे मार्क्स पूरे 1 मिल जाए. देखिए, एक्सप्रेशन में क्या होता है, 1 मार्क टाइटल का है, 1 मार्क एक्सप्रेशन का है. ठीक है, एक्सप्रेशन में एक तो आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी will be checked. Okay, second, sentence structure, whether you are forming simple sentences or complex sentences. Sentence structures will be evaluated. Grammar accuracy, sentence structure, and last but not the least is spellings. So these 3 must be accurate or up to date. Grammatical accuracy must be there, sentence structure will be nice, and spelling should not be totally wrong. So ये तीनों आपके ये जो है एक्सप्रेशन के अंदर कंसीडर किए जाते हैं. ठीक है, पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, रिपोर्ट राइटिंग का कैसे रिपोर्ट लिखते हैं. हेडिंग कैपिटल लेटर्स में आएगा, टाइटल जिसे हम कहते हैं, जो कि 1 मार्क का है. बाय, अगर पर्सन का नाम दिया है तो सेम नेम, अदरवाइज एनी अल्फाबेट और कुछ भी आप लिख सकते हो. रिपोर्ट नेक्स्ट लाइन से ही बिगिन करेंगे. फर्स्ट प्लेस वी विल मेंशन, देन डेट. अगर आप बोलेंगे कि सर प्लेस भी नहीं दिया है, तो अगेन यहाँ पे XYZ, PQR, LMN कुछ भी आ सकता है, बट ये सेम ना हो, जो पर्सन लिख रहा है और ये प्लेस सेम ना हो, इसको अलग आपने मेंशन करना है. एनी अल्फाबेट कैन बी राइट डाउन. ओके, अब आप इसमें कंटेंट जो है और या इसकी जो वर्ड लिमिट है, बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें वर्ड लिमिट हम कितना लिखें. वर्ड लिमिट जो इसकी होती है वो आपकी होती है 120 to 150 वर्ड्स. 120 to 150 वर्ड्स, ये आपने ध्यान रखना है. तो अदरवाइज जो हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन था, जैसे आपने पहले किया था ये नोटिस राइटिंग या एडवर्टीजमेंट राइटिंग, उसमें 50 वर्ड्स लिखते थे. ठीक है, लेकिन अभी आपका क्वेश्चन है 5 मार्क का, तो आपको इसको 120 to 150 वर्ड्स में लिखना है. ठीक है, इसका ध्यान रखें. जो रिपोर्ट लिखी जाती है, इस चीज का ध्यान रखें, मस्ट बी रिटन इन थर्ड पर्सन, ओके. दीज आर द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस डियर स्टूडेंट्स. ये बड़ा ध्यान देने की योग्य बातें हैं. अदरवाइज कई बच्चे क्या है, इसमें नेग्लिजेंस कर देते हैं और रिपोर्ट राइटिंग को केयरलेसली लेते हैं और उसमें वो मार्क्स अपने डिडक्ट करवा देते हैं. ध्यान रखें, ये थर्ड पर्सन को लिखी जाए. और जो पेपर में रिपोर्ट राइटिंग क्वेश्चंस पेपर में आता है, वो 2 तरीके से आपको रिपोर्ट आ जाती है. नंबर 1 जो है स्कूल मैगजीन के लिए, स्कूल
मैगजीन, स्कूल मैगजीन के लिए जो है वो आती है। दूसरी न्यूज़पेपर के लिए, न्यूज़पेपर के लिए जो है वो आपको रिपोर्ट राइटिंग पूछी, दोनों में से कोई भी आपको पेपर में आ सकती है 5 मार्क्स के लिए। तो ये आप अपने इसको ध्यान रखेंगे जब आप रिपोर्ट लिखेंगे, तो इसका आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक और चीज, अब आप कंटेंट की हम बात करते हैं, कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए। एक तो 120 टू 150 वर्ड्स, दूसरा मैंने बोला कि वो रिटर्न होनी चाहिए थर्ड पर्सन के लिए, और उसके बाद मान लीजिए कोई रिपोर्ट है एक्सीडेंट की है ना, ABC XYZ रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें पॉइंट्स क्या है। एक तो इवेंट, अगर कोई इवेंट है या कोई इंसिडेंट है, शुड बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, क्योंकि 120 वर्ड लिखने ना आपने, वो एक्सप्लेन्ड होने चाहिए इन डिटेल। आपकी क्वेरीज में लूंगा, अगर कोई क्वेश्चन कभी पूछना होगा आई विल गिव यू द टाइम। अभी आप थोड़ा सा समझ ले पहले। इवेंट इंसिडेंट्स कोई भी हो अगर आप जो लिख रहे हो वो एक्सप्लेन होना चाहिए डिटेल में। एंड उसके बाद जो आपने ध्यान रखना है, जैसे कि फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स कैसे कि, जैसे कि टाइम, टाइम ड्यूरेशन हो गई, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कर रही है तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। कोई अगर उसमें इंसिडेंट हुआ है तो उसमें डैमेज कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ठीक है। ये आपको पूरा मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट आपका पॉइंट ध्यान रखना है, ये हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, 3 मार्क्स जो आपके कंटेंट के हैं ध्यान रखना है। उसके बाद आपने इसमें ध्यान रखना है, आपको अवॉइड क्या करना है, अवॉइड ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, ऑर्नामेंटल। अच्छा जल्दी से बताओ मुझे, ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं। अरे पता होना चाहिए, ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं। ओके, 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स, टाइप यस, ज्वेलरी, ज्वेलरी गहने वगैरह जो है ना, जो उनको ऑर्नामेंट्स कहते हैं, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ऑर्नामेंट्स का मतलब क्या है, अवॉइड ऑर्नामेंट लैंग्वेज, यानी कि आपको ऐसी लैंग्वेज को जोट डाउन नहीं करना है जो बिल्कुल दिखावटी लगे, है ना, दिखावटी लैंग्वेज नहीं यूज करनी है, बिल्कुल कॉन्टेंटेड एंड टू दी पॉइंट एंड स्पेसिफिक ही आपको लैंग्वेज को उसमें रिपोर्ट राइटिंग में आपने करना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखें, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा या दिखावटी या ऐसी लैंग्वेज ना लिखें जो उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो ये ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी कंटेंट की, जल्दी से मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं रिपोर्ट राइटिंग का, और उसके बाद जो है हम एक सैंपल जो है रिपोर्ट राइटिंग का डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। जो बच्चे लेट क्लास में ज्वाइन हुए वो ध्यान रखें, हमने क्या डिस्कस किया, क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग जो कि अगेंस्ट है, ऑप्शन में अल्टरनेटिव है एप्लीकेशन फॉर जॉब, ठीक है। आपको एप्लीकेशन फॉर जॉब का क्वेश्चन भी दूंगा मैं अभी आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट में, तो आपने उसमें लिखना भी अपनी फेयर कॉपीज पे, तो वो ध्यान रखें। अगर फिर भी किसी बच्चे ने किसी कारणवश क्लास को मिस किया है, पिछली क्लास को, तो वो रिकॉर्डिंग्स में जाके उसको दोबारा से जो है वो चेक करे कि किस तरह से उस कॉन्सेप्ट को करवाया गया था, ओके। तो रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग टॉपिक, मार्किंग स्कीम सबसे पहले हमने डिस्कस किया, जिसमें टोटल 5 मार्क्स हैं, टाइटल 1 मार्क का, कंटेंट 3 मार्क का, एक्सप्रेशन जो है वो आपका 1 मार्क का। फिर हमने तीनों को डिस्कस भी किया। सबसे पहले टाइटल, टाइटल एक तो बॉक्स बनाना है, और बॉक्स बनाने के बाद आपने सबसे पहले हेडिंग लिखना है कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। और नीचे उसकी जिसने उस रिपोर्ट को लिखा है बाय, और टाइटल का नाम आपने कैपिटल में ही लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में प्लेस और डेट को आपने मेंशन करना है, ठीक है। प्लेस जो अगर तो मेंशन किया है उसमें क्वेश्चन में तो वही, अदरवाइज एनी अल्फाबेट, डेट मेंशन करें, और उसके बाद आपकी कंटेंट जो है वो बिगिन हो जाएगा। ये कंटेंट आ गया 120 टू 150 वर्ड्स का। और उसके बाद हमने बात करी थी एक्सप्रेशन, जो कि 1 मार्क का है। एक्सप्रेशन में आपने ग्रामेटिकल एक्यूरेसी ध्यान रखनी है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, और स्पेलिंग्स में मिस्टेक नहीं करनी है। फिर हमने कंटेंट में ध्यान रखना था, कंटेंट में क्या क्या करना है, एक तो थर्ड पर्सन को लिखना है, उसके बाद न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट आ जाती है, स्कूल मैगजीन के लिए आ जाती है। मान लीजिए आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट हुआ तो उसके लिए स्कूल मैगजीन के लिए आप रिपोर्ट लिखें, ठीक है। या या टीचर्स डे सेलिब्रेशन या चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन आपके
के लिए आप रिपोर्ट लिखें स्कूल मैगजीन के लिए, ठीक है। न्यूज़पेपर में इवेंट्स में आ सकती है, जैसे मान लीजिए दिल्ली के प्रगति मैदान में कोई बुक फेयर हुआ है, तो एज ए रिपोर्टर, एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट आपने न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखनी है। तो इस तरह से आपको न्यूज़पेपर के लिए, अब जैसे मान लीजिए इलेक्शंस चल रहे हैं, है ना, पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस पर रिपोर्ट लिखने के लिए आ सकती है, तो ये न्यूज़पेपर के लिए हो गई। फिर मैंने बताया कि इवेंट जो है, इंसिडेंट, जो भी इवेंट हो रहा है या इंसिडेंट हो रहा है, उस पर आपको एक्सप्लेन करना डिटेल में, ताकि जो आप पढ़ रहे हो, जो उसको रीडर पढ़ रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाए। फैक्ट जो है, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, या डैमेज हुआ कोई या लॉस हुआ, उसको आपने पूरा एक्सप्लेन करना है। और कोई भी ऑर्नामेंटल लैंग्वेज को लिखने से आपने बचना है, ठीक है। जल्दी से, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी यू कैन आस्क, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस वन सैंपल। इज देयर एनी क्वेरी? Students, if you have any query, you can ask, बच्चे. Otherwise, we will discuss one sample. Okay, then let me ask then one question from all of you. Total marks of this question? Total marks. Five. Okay. Expression is of how many marks? One. And content? Three. Three. Title should be in capital or in small? Capital. Report should be written in first person, second person, or third person? Third. Third person. Okay. So let us discuss one sample now. Question is, you are Sitharaman Das, staff correspondent. कॉरेस्पॉन्डेंट बताना सर मुझे क्या होता है कॉरेस्पॉन्डेंट? अरे किसी को पता नहीं कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है? नोबडी नोज? तो वेरी सिंपल, स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट। आप कई बार न्यूज में भी सुनते होंगे स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट। क्या होता है कॉरेस्पॉन्डेंट? हाँ, चाहत आपको पता है? स्टूडेंट्स रिप्लाई, हु नोज कॉरेस्पॉन्डेंट मीन्स? कॉरेस्पॉन्डेंट मीन्स रिपोर्टर। रिपोर्टर को बोलते हैं बच्चे कॉरेस्पॉन्डेंट मीन्स रिपोर्टर। राइट ए रिपोर्ट अबाउट दी सेम। हमने लिखा यू आर सीतारमन दास, स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर द ट्रिब्यून। ओके, तो राइट अ रिपोर्ट ऑन दी बस एक्सीडेंट that killed 14 people on it. आपको क्लूज भी दिए जा सकते हैं, वर्बल विजुअल। यूज द गिवन क्यूज along with your own ideas, along with your own ideas। आपने अपने आइडियाज भी यूज करने हैं और क्यूज जो आपको दिए हुए हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने आपको क्यूज कौन से दिए हुए हैं? नंबर 1, ट्रेजिक रोड एक्सीडेंट, एक क्यू दे दिया आपको।
सेकंड आपको दिया ट्रक कोलाइडेड विद बस, ट्रक कोलाइडेड विद बस, सेकंड। थर्ड दिया आपको वेडिंग पार्टी बस, इट वाज वेडिंग पार्टी बस। फोर्थ दिया आपको क्लू ड्रंक ड्राइवर। एंड लास्ट क्लू है आपको एंगर इन पीपल, एंगर अमंग पीपल। ओके, तो ये आपको क्यूज जो है आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले ये क्लियर करें, सो दिस न्यूज़पेपर इज फॉर न्यूज़पेपर और स्कूल मैगजीन? Newspaper. हाँ, न्यूज़पेपर। सो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? बॉक्स जो है वो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे। ओके, अब मुझे सबसे पहले तो आप टाइटल बना के दिखाएं, इसका क्या टाइटल बनेगा? देखता हूं कौन बनाता है। ट्रेजिक एक्सीडेंट, ओके। और बनाइए टाइटल, देखता हूं कौन बच्चा अच्छा टाइटल बनाता है इसका। हरी अप। Approximately 90 students are attending the class and only one title has come so far. Road accident, okay. Bus accident, tragic road accident, tragic road accident, tragic road accident, tragic accident. Okay, tragic accident on road, okay. Road accident. बिकॉज टाइटल जो है ना, आपका टाइटल वो बड़ा कैची होना चाहिए, है ना। जैसे एकदम न्यूज़पेपर आप उठाओ, आपका ध्यान एकदम उसके ऊपर ही चला जाए, तो ऐसा टाइटल होना चाहिए। ओके, रोड व्हीकल्स कोलिजन, ओके। बस एक्सीडेंट, ओके। तो मैनी स्टूडेंट्स हैव गिवन द एग्जांपल्स, तो हम इसको लिखते हैं 14 killed in a road accident, in a road accident, 14 killed in a road accident, ACCIDENT। देखिए, जैसे न्यूज़पेपर पे जब ये टाइटल पढ़ा जाएगा कि 14 लोग मर गए, है ना, तो सॉरी, तो वो एकदम से आपका अटेंशन जो है वो कैच करेगा। और ये रिपोर्ट दी किसने है, यहां नीचे लिखेंगे इसके, रिपोर्ट बाय, क्या नाम था पर्सन का? SITHA, सीथा रमन दास। और स्टाफ ये है कौन है, कि डेजिग्नेशन क्या है? स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट, ओके। किस न्यूज़पेपर का है ये, किस न्यूज़पेपर का है ये कॉरेस्पॉन्डेंट? हाँ, वेरी गुड। The Tribune. देखना है मैंने कौन कौन बच्चा एक्टिवली बैठा है और कौन किसने क्वेश्चन ध्यान से सुना है, ऐसे पैसिवली नहीं बैठना है क्लास में, ठीक है। तो ये अपना सारा एक ही लाइन में लिख देना है, ठीक है। रिपोर्ट बाय, रिपोर्ट किसने लिखी? बाय सीतारमन दास, जो कि स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट है, और न्यूज़पेपर का नाम द ट्रिब्यून। अच्छा, अगर आप बोले कि सर उसमें न्यूज़पेपर का नाम ही नहीं दिया, तो आप अपनी तरफ से कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्राइवेसी की दिक्कत नहीं है, बस नेम नहीं आपने अपनी तरफ से लिखना, ठीक है। अब सबसे पहले क्या आएगा, जल्दी बताओ। मैंने स्ट्रक्चर में क्या बताया था? Place. Place and date. हाँ, पहले प्लेस आएगा, फिर आएगा अब जैसे आपको नाम देखो लिखा है ना, सीता रमन दास, मोस्ट प्रोबेबली ये साउथ में जो है नाम ऐसे रखे जाते हैं। वैसे भी हमने लोकल नेम नहीं लिखना है कोई, तो हम इसके लिए नाम ले लेते हैं मदुरई चेन्नई के पास। और फिर उसके बाद हमने डालनी है डेट, कॉमा डालेंगे, जैसे आज है आपकी 18 जनवरी, कॉमा 2022, ठीक है। फिर उसके बाद साइन किस चीज का आएगा? Colon. सेमीकोलन। नहीं, सेमी कॉलन नहीं बच्चे, कॉलन आएगा, कॉलन का साइन आएगा यहाँ पे, और उसके बाद है रिपोर्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमारा टाइटल ही बोल रहा है, हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। कैसे?
14 people, comma, including a woman and a 2-month-old baby. हमने खींचना है ना रिपोर्ट को, अपने वर्ड भी लिखने हैं. एंड ए 2 month old baby were killed in a tragic रोड एक्सीडेंट. इन अ ट्रेजिक रोड एक्सीडेंट में. ये हमारी फर्स्ट लाइन फिनिश हो गई. ठीक है. बिगनिंग में हमने क्या किया, हमने लिखा कि 14 जो पीपल हैं इंक्लूडिंग विमेन एंड 2-month-old बेबी वर किल्ड इन अ ट्रेजिक रोड एक्सीडेंट. ये हमारी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो गई. ठीक है. तो अब उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. क्या लिखेंगे इसमें हम? ट्रेजिक रोड एक्सीडेंट. अब इसको और फर्दर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं. ठीक है. ट्रेजिक रोड एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग, इसको हमने फर्दर और ज्यादा ऐड कर दिया, इन्वॉल्विंग ट्रक. ये तो क्वेश्चन में भी दिया था ना हमें, ट्रक. और साथ में क्या हुआ था, किसके साथ हुआ एक्सीडेंट? बस. Lights with the bus. एंड बस एट, अपनी तरफ से कोई रोड लिख दो, है ना. लाइक एट शांति रोड मदुरई. शांति रोड मदुरई पर ये एक्सीडेंट हुआ. ठीक है. फुल स्टॉप. उसके बाद दी इल फेटेड बस, मतलब जिसका दुर्भाग्य था, अच्छा सौभाग्य नहीं था. बस वॉज कैरिंग, CARRYING, कैरिंग. यूजली बच्चे जो हम अपने रिपोर्ट राइटिंग है ना, इसको हम पैसिव फॉर्म में ज्यादा यूज करते हैं. ठीक है. पैसिव फॉर्म में इसको हम लिखते हैं ज्यादा. तो द लाइफ फेटेड बस वॉज कैरिंग पीपल. अब हमने दूसरा क्यू डालना है इसमें, पीपल फॉर अ वेडिंग पार्टी के लिए वो उसको लेके जा रही थी बस. फ्रॉम कहां से कहां जा रही थी? फ्रॉम चेन्नई टू मदुरई. चेन्नई से मदुरई के लिए वो जा रही थी. एंड जो ट्रक था, द ट्रक ऑन द अदर हैंड, जिसके साथ टक्कर हुई है, द ट्रक ऑन द अदर हैंड वॉज लोडेड था. वो किस चीज से लोडेड था? कुछ भी आप डाल सकते हो. विद आयरन स्पोर्ट से वो लोडेड था. जैसे ही वो एक्सीडेंट हुआ तो क्या हुआ? द इंजर्ड वर IMMEDIATELY immediately rushed to the, कहां पे? Hospital. टू दी नियर बाय हॉस्पिटल. जो नियर बाय हॉस्पिटल था, इमीडिएटली उनको वहां पे ले जाया गया. वेयर दे स्कम्ड, SUCCUMBED, स्कम्ड टू डेथ. देखिए, मिनिमम आप इसमें 1 पैराग्राफ लिख सकते हैं, मैक्सिमम 2. ठीक है. वैसे अच्छा ज्यादा तभी रहेगा कि हम इसको 2 पैरास में लेकर जाएं, क्योंकि अगर हम इसको एक ही पैरा में ऊपर से लेकर नीचे तक जाएंगे तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगेगा. तो अब हम इसको एक दूसरे पैरे से स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो यहां से अब दूसरा पैरा स्टार्ट कर देंगे. दी पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस. पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट उसने किया? अगेंस्ट दी ट्रक ड्राइवर. अगेंस्ट दी ट्रक ड्राइवर इज सेड टू बी, इज, ये भी क्यों यूज कर रहे हैं हम नेक्स्ट वाला, इज सेड टू बी
ड्रंक वाइल ड्राइविंग, सेड टू बी ड्रंक वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग के समय उसने ड्रंक किया हुआ था, ड्रिंक किया हुआ था। तो ड्यूरिंग दिस इसको हमने और ज्यादा खींचना है, ड्यूरिंग दिस सम डिस्ट्रक्टिव elements tried to set the truck ablaze। तो जो कुछ शरारती तत्व थे ना, जब उन्होंने ऐसा देखा तो उन्होंने ट्रक को आग लगाने की कोशिश करी, कि इससे काफी लोगों की जो है वो डेथ हो गई एट द मोमेंट। तो कुछ शरारती तत्व जो थे उन्होंने इसका जो है दुरुपयोग करते हुए उसको आग लगाने की कोशिश करी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, द पुलिस जो वहां पे मौके पे पहुंची, पुलिस कंट्रोल्ड दी कमोशन, हमने द लास्ट लेसन चैप्टर में पढ़ा था, न्यूसेंस कमोशन कॉज्ड आफ्टर द एक्सीडेंट। एकदम से जो वहां पे क्रिएट हुआ ये काम, कॉज्ड आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद उन्होंने एकदम से कंट्रोल करने की कोशिश करी। फिर कॉमा समहाउ, किसी तरह से, समहाउ, एंड टुक द ट्रक ड्राइवर, into the custody, उन्होंने उसको कस्टडी में लिया, फॉर फर्दर इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन के लिए उसने उनको कस्टडी में ले लिया। इंस्पेक्टर की स्टेटमेंट दे देंगे लास्ट में, इंस्पेक्टर राम, कोई भी नाम दे दे, राम said that the driver and other people on the bus, are safe, and the driver will have to face strict punishment for the accident। उसको जो है वो पनिशमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट जो है वो मिलेगी। तो ये देखिए, तो ये आपके सामने 150 वर्ड्स में हमने एक क्विक तरीके से जो है वो मेंशन किया। नो डाउट सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग सर टाइम ऑफ एक्सीडेंट, यस डेफिनेटली इट कैन बी मेंशन्ड, मॉर्निंग का, इवनिंग का, आप डायरेक्ट एग्जैक्ट टाइम भी लिख सकते हो, अपनी तरफ से लिख सकते हो। इनडायरेक्टली कहने का मकसद क्या है कि आपने एक तो ये क्यू आपने ध्यान रखना है, ये जो क्यू कार्ड्स हैं, जहां पे भी आपने ये क्यू कार्ड्स यूज किए हैं ना, आपने उसको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, देखिए सारी रिपोर्ट तो इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन एग्जामिनर एक मार्क्स कैसे देता है बच्चे को, कि जो एग्जैक्ट पॉइंट है उसको आपने अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन का मतलब ये नहीं कि आप सारी लाइन को अंडरलाइन कर दें, ये जो क्यू कार्ड्स दिए हैं 4, एक तो आपको उनको करना है। इन क्यू कार्ड्स के अलावा जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जो कि रेलेवेंट है एक्सीडेंट के हिसाब से, आपने उसको भी अंडरलाइन करना है। पर अंडरलाइन किसको करना है, ओनली फ्रेजेस को, सेंटेंस को अंडरलाइन नहीं करना है आपने। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है लिखते हुए। तो लास्ट में हम इसको वाइंड अप करते हैं। आज हमने क्या किया, वी हैव डिस्कस्ड रिपोर्ट राइटिंग टुडे। वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट मार्किंग स्कीम, टोटल 5 मार्क्स, जिसमें इंक्लूड करता है टाइटल, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद हमने इसका फॉर्मेट देखा, स्ट्रक्चर देखा, जिसमें टाइटल आएगा कैपिटल में, नीचे वाई रिपोर्टर है या स्कूल का स्टूडेंट है जो स्कूल मैगजीन के लिए लिख रहा है। उसके बाद कंटेंट डालेंगे, और कंटेंट पे हमने क्या लिखना है वो हमने रिसेंटली अभी डिस्कस किया एक सैंपल रिपोर्ट के माध्यम से। और पूरी जो इन्वॉल्वमेंट है, क्यू कार्ड्स की जो इन्वॉल्वमेंट है, उसको भी हमने ऐड किया। बाकी बच्चे रेस्ट इज योर क्रिएटिविटी। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपने सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है। वट एवर क्रिएटिविटी यू आर हैविंग एट द मोमेंट,
लेकिन ये जरूर ध्यान रखें, लिखने से पहले आप सोचें जरूर, है ना, क्योंकि बिना सोचे समझे अगर आप एकदम से लिखना स्टार्ट कर देंगे देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम लेटर ऑन। कई बार आप सोचते सोचते साथ साथ में लिखते जाते हैं और जब यहाँ तक पहुंच जाते हैं फिर आपको लगता है कि एक पॉइंट तो रह ही गया, फिर आप उसको यहाँ पे भी ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको ऊपर ही ऐड करना था। तो सबसे पहले आप एक रफ पॉइंट्स में अपने पॉइंट्स बना लें रफ स्पेस पे, और जब ये सारे पॉइंट्स बन जाएं फिर उसको आप सेंटेंस स्ट्रक्चर में फॉर्म करके फिर आप अपने रिपोर्ट में जोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपकी किसी की क्वेरीज हैं तो आप पूछ लीजिए फटाफट। इज एनीवन हु वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द सेम क्वेश्चन रिपोर्ट राइटिंग? देन डू हरिडली। No one would like to ask any question? Okay, then very soon you will get assignment and as well as test from the same two topics. One is report writing and one is application for job. Okay, so I hope all of you will prepare it and revise it thoroughly. And very important instruction is from BBC Compacta. BBC Compacta में जो writing section के अंदर ये दोनों क्वेश्चन है आपने उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर जॉब के भी आपने लेटर्स करने हैं उस पे, और रिपोर्ट राइटिंग के सैंपल भी आपने उस पे करने हैं। ठीक है, till then all of you stay safe and stay happy. Goodbye.